यीशु परमेश्वर पिता की इच्छा से इस दुनिया में आए। Jesus veio para salvar o homem do seu pecado. यीशु आदमी और औरतों को उनके पापों से बचाने के लिए आए। Todos nós pecamos, हम सब पापी हैं, estamos separados de Deus. हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। Mas Jesus, o Filho de Deus, परमेश्वर के पुत्र यीशु को foi enviado ao mundo इस दुनिया में इसलिए भेजा गया para nós conhecer Deus. ताकि हम परमेश्वर से मिल सकें। Jesus reconciliou a humanidade com Deus. यीशु इंसानों का परमेश्वर से मिलन कराते हैं। Eu vou falar os momentos finais de Jesus aqui na Terra. मैं धरती पर यीशु के अंतिम पलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। Na última noite da sua vida aqui na Terra. इस धरती पर अपने जीवन की अंतिम रात में Ele estava no monte orando com seus discípulos. वह एक पहाड़ी पर थे अपने शिष्यों के साथ। Jesus sabia que no dia seguinte यीशु जानते थे कि अगले दिन ele seria morto, उन्हें मार दिया जाएगा। conforme o propósito de Deus. परमेश्वर की यही इच्छा थी। Como ele sabia, उन्हें यह इसलिए पता था ele estava em sofrimento muito grande. क्योंकि वे बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। A Bíblia fala que Jesus orou a Deus com tanta intensidade naquela noite, बाइबल कहती है कि यीशु ने उस रात इतनी शिद्दत से परमेश्वर से प्रार्थना que o की seu suor se transformou em gotas de sangue. कि उनका पसीना लहू की बूंदों में बदल गया। E Jesus disse para os seus discípulos orarem यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे प्रार्थना para करें não cair em tentação. और किसी तरह का कोई लालच न करें। Logo depois, और उसके बाद Jesus foi preso. यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। No dia seguinte, अगले दिन ele foi interrogado pelas autoridades romanas. रोमन अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की E o povo, sem piedade, और उन क्रूर लोगों ने no mercy, pediu a condenação de Jesus. यीशु की निंदा करने का आदेश दिया। Jesus, mesmo sendo inocente हालांकि यीशु निर्दोष थे e sem nenhuma acusação और उन पर रोमन अधिकारियों ने pelas autoridades romanas, कोई आरोप नहीं लगाया था, mesmo assim foi entregue फिर भी उन्हें सूली पर para ser crucificado, लटकाने की सजा सुनाई गई। que era uma tradição romana किसी व्यक्ति को सूली पर crucificar लटकाना alguém. एक रोमन परंपरा थी E Jesus foi crucificado. और यीशु को सूली पर लटकाया गया। A crucificação era a pior morte romana, सूली पर लटकाना सबसे भयानक रोमन सजा थी mais dolorida. जो बेहद दर्दनाक थी। Então, और इसलिए Jesus sabia que tudo fazia parte do plano de Deus. यीशु जानते थे कि यह सब परमेश्वर की योजना है, Ele se deixou, então, ser condenado. लेकिन उन्होंने खुद पर दोष लगने दिया। As autoridades disseram, एक अधिकारी उदास था। mas Jesus não vai se defender. यीशु, क्या आप अपना बचाव नहीं करेंगे? Ele disse, o meu reino não é desse mundo. मेरा शासन, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। Na lei de Deus, परमेश्वर के कानून के precisava मुताबिक haver derramamento de sangue लहू बहना जरूरी था para haver perdão dos pecados. ताकि पापों के लिए क्षमा मिल सके। E derramamento de sangue de Jesus और यीशु के लहू बहने को foi considerado o sacrifício perfeito परमेश्वर की नजर में aos olhos de Deus. बिल्कुल सही बलिदान माना गया। Ao terceiro dia, यीशु की मृत्यु के बाद depois da morte de Jesus, तीसरे दिन Deus Pai परमेश्वर पिता ने ressuscitou ele. उन्हें पुनर्जीवित कर दिया Jesus, os discípulos, então, और इसलिए सभी शिष्य ao terceiro dia, bem cedinho, तीसरे दिन की सुबह सुबह foram até o sepulcro यीशु की कब्र पर गए e só viram as vestes, और उन्हें वहां सिर्फ कपड़े e não दिखे। viram onde estava o corpo de Jesus. उन्हें यीशु का शरीर दिखाई नहीं E दिया। 2 anjos apareceram तभी 2 देवदूत प्रकट हुए e falaram para os discípulos, और शिष्यों से बोले, por que procuram आप उन्हें मृत लोगों में entre os mortos क्यों तलाश रहे हैं aquele que está vivo? जो पहले से जीवित है। Logo depois, और उसके बाद Jesus já apareceu यीशु प्रकट हुए, ressuscitado पुनर्जीवित हुए para os discípulos. शिष्यों के लिए। Jesus mostrou que estava vivo, ressurreto. यीशु ने दिखाया कि वह जीवित हैं और पुनर्जीवित हुए हैं। Ele ficou mais 40 dias sobre a terra, उन्हें धरती पर इस स्थिति में 40 दिन और मिले dando sinais और उन्होंने संकेत que ele दिया havia ressuscitado. कि उनका पुनर्जीवन हो गया है। Os discípulos estavam reunidos em oração. सभी शिष्य इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे Jesus entrou pela sala, और यीशु ने कमरे में प्रवेश किया, atravessou as paredes, दीवारों से होकर se गुजरे apresentou aos discípulos और अपना परिचय दिया e mostrou a marca da और crucificação. अपने हाथों के निशान दिखाए E disse para eles tocarem, और हाथ के निशानों को छुआ, para verem que ele estava ressuscitado. दिखाया कि वह जीवित हैं और पूर्ण जीवन मिला है।
Jesus disse para perdoarmos os nossos próximos, यीशु ने दूसरे लोगों को क्षमा करने के लिए कहा, para também sermos perdoados por Deus. क्योंकि इसी तरह से परमेश्वर भी हमें क्षमा करते हैं। E ele disse que mandaria o Espírito Santo para nos consolar. और उन्होंने कहा कि वे पवित्र आत्मा को भेजेंगे ताकि हम खुश रह Que é सकें। o próprio Espírito. यह परमेश्वर की आत्मा होगी। Então Jesus foi elevado aos céus, और फिर यीशु को स्वर्ग में बुला लिया गया assentou à direita de और Deus. परमेश्वर के दाईं ओर बैठे हैं। E ele prometeu que um dia voltaria para nos buscar. उन्होंने वादा किया कि वे किसी दिन हमें लेने आएंगे। Jesus disse que ele foi para o Pai Celestial. यीशु ने कहा कि वे परमेश्वर पिता के पास आए हैं, Assim como o Pai Celestial enviou Jesus ao mundo जैसे पिता ने यीशु को दुनिया के पास para भेजा anunciar o था। reino de Deus. उन्होंने परमेश्वर के राज्य की घोषणा की। Jesus também envia eu e você यीशु ने मुझे और आपको देखा। para anunciar o reino de Deus. उन्होंने परमेश्वर के शासन की घोषणा करने के लिए हमें भेजा। Se você crê em Jesus, अगर आपको वाकई यीशु पर भरोसा है você pode fazer essa oração तो comigo आप अब मेरे साथ प्रार्थना कर सकते para हैं aceitar Ele no seu coração. ताकि आप उन्हें अपने हृदय में स्थान दे सकें। Jesus está vivo, यीशु जीवित हैं, Ele cura, वह चंगा करते हैं, Ele transforma, हालात बदलते हैं, Ele perdoa, क्षमा करते Ele हैं liberta do और pecado, हमें पापों से मुक्त करते हैं। Ele abençoa o nosso वो casamento, हमारी शादियों में कृपा बरसाते हैं os nossos relacionamentos. और हमारे रिश्तों पर भी Ele faz com que a gente tenha fidelidade, वह हमें निष्ठावान बनाते हैं, amor, प्यार, alegria, खुशी देते हैं bondade no nosso और coração, दिल से दयावान बनाते हैं, esperança de viver. जीने की उम्मीद देते हैं E mais importante, और सबसे बढ़कर esperança de que quando ये morrermos, उम्मीद देते हैं कि जब हम मरेंगे estaremos com Cristo para sempre. तो हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे। Vamos orar. आइए अब प्रार्थना करें। Senhor Jesus, प्रभु यीशु seja abençoando nessa vida, हम पर कृपा करो, orando nessa vida, हमारे जीवन में प्रवेश करो। creu agora no seu nome. अब हम आपके नाम पर भरोसा करते हैं। Cura as feridas do corpo, शरीर के घावों को चंगा करो, cura as doenças emocionais, भावनात्मक बीमारियों को शांति देकर toca paz, ठीक करो। enche essa pessoa com o teu Espírito Santo इन लोगों में अपनी पवित्र आत्मा का प्रवेश कराओ e mostre que tu estás vivo. और उन्हें दिखाओ कि आप जीवित हैं। Se प्रभु revela essa vida. इस व्यक्ति को कुछ ऐसा दिखाओ Faça sinais e prodígios nessa vida. जिससे इस जीवन के संकेत मिले E faça dessa vida filho de Deus também. और इस व्यक्ति को भी परमेश्वर का पुत्र E discípulo do Senhor. और परमेश्वर का शिष्य बनाओ। Amém. आमीन। Que Deus te abençoe. परमेश्वर आप पर कृपा करे। Jesus te ama muito. यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं Continuar se revelando a você. और वो आपसे लगातार मिलना चाहते हैं। Nós também te amamos. हम भी आपको प्यार करते Dê हैं। o seu like. वीडियो को लाइक करें, Compartilhe esse vídeo. दिल से शेयर करें। Jesus está vivo यीशु जीवित हैं e voltará para nos buscar. और वो हमें लेने वापस आएंगे। Amém. आमीन।